Good morning, student of class 5. How are you? I hope you all are fit and healthy. Welcome back to your EVS class, student. Today date is 25 January 2021 and I am teaching you chapter number 7, protecting plants and animals. So let's do little recapitulation what we have done in our previous video. So student, in the previous video I explained you how all the living things are depend on each other, how all living things depend on each other. Okay, after that student, I explained you classification of animals, that they are divided into 4 groups. Herbivore animals means plant eating animals. Then next group is the carnivorous animal. Flesh eating animals are known as carnivore animals. They kill other animals and eat the flesh of that animals. Then third group which I explained you, that is omnivore animals, animals which eat both plants and flesh of the animal, that are known as omnivore animals. Next group is the decomposer. It is a very important, it plays a very important role because they clean the environment. So they clean the environment. Why they play a very important role? How they clean the environment? Because they feed on dead plants and animals. ठीक है? So they feed on dead plants and animals. In this way they clean the environment. देखो बेटा, इस समय मैं रिकैप्चुलेशन करा रहा हूँ, ठीक है? तो मैंने बहुत वन लाइन में सारी चीज़ों को रिकैप्चुलेट किया है. आप ये मत सोचना कि बुक में तो इतना ज़्यादा दिया, सर ने एक लाइन बोली और ख़त्म कर दिया. जस्ट आई एम डूइंग द रिकैप्चुलेशन what we have done in our previous video. If you want to watch this topic in detail, then see the previous video of this chapter. This is a recapitulation, इसलिए only in single line हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हम पढ़ा चुके हैं प्रीवियस वीडियो में. उसके बाद मैंने आप लोग को प्राइमरी कंज्यूमर्स में कौन एनिमल्स आते हैं, दैट आई डिस्कस विद यू, दैट इज योर हार्बिवोर एनिमल्स. They come in, they are primary consumers. And when we are talking about the living things, so plants, animals and human beings. So plants are the producers and animals and human beings, we come in which category? We are consumers, because plants can only prepare their own food. So they come in which category? Plants are known as producers. Now see student, after that I explained you food chain and the importance of food chain. Why food chain is so important? So, and the concept of food web means the same animal will eat variety of food. So that also I explained you. And after that we discuss animals are also depend on plants for their shelter. See these trees. So these things we have discussed, how animals are depend on plants. After that, how human beings depend on plants, we have also discussed this.
After that, the next topic which I covered in my previous videos are plants depend on animals. How the plants are depend on animals. So we have discussed all these points also. Then what is a habitat, that we discuss. And in the environment there are two components, that is biotic and abiotic components. Biotic components means it includes all living creatures like human beings, animal, insects and plants. And abiotic components includes all the non-living things like sun, water, air, etc. The next topic which I explain you, that is human activity disturb the environment. How human activity disturb the environment, this also we have discussed. Now today let's start with the true and false. Okay, let's start with true and false. So I am reading question from the book and directly I will write the answer on the board. So all of you open page number 5353. First, second, third, fourth and 5. Okay. So these are the first 5 questions. First one is plant take in oxygen during the process of photosynthesis. Plants take in oxygen during the process of photosynthesis. So this is a false statement. So student, this is a false statement because plant don't take oxygen, they release oxygen and this oxygen is taken by us. And plants, what do the plant? They take carbon dioxide when they prepare food in the process of photosynthesis. So they take carbon dioxide. That is the reason the first statement is false. Second statement, animals that eat, okay, animals that eat other animal flesh are known as herbivorous animal. So student, this is a wrong statement. The animals which eat flesh, they are known as carnivorous, and in this statement it is given herbivorous. So this is also false. So this is also false. Now third question, see the third one. There are two components in our environment. Yes, this is true statement. There are two components in our environment, that are biotic and abiotic. Biotic includes all the living creatures like animals, human beings, plants, insects, all these. And abiotic means all the non-living things. ठीक, like soil है, sun है, ठीक है, air. So this is that. Now fourth question is plant depend on animals for carbon dioxide. Plant depend on animals for carbon dioxide. Yes, this is a true statement because student, as you know, plants need carbon dioxide and this carbon dioxide they are getting from the animals and from the human beings, and they need this at the time when they prepare food in the process of photosynthesis. Next है, cutting tree on a large scale is known as afforestation. So this is a question number 4. Plant depend on animal for carbon dioxide. This is true statement. Is it clear? This is true statement. Now question number 5. Cutting trees on a large scale is known as afforestation. So this is false. This is false. What is the reason for that? Reason is that cutting of the trees is known as deforestation. ठीक है, कटिंग ऑफ ट्रीज को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं? कटिंग ऑफ ट्रीज को हम लोग डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं, इसलिए ये क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है. इज इट क्लियर? नाउ प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट. नेक्स्ट हेडिंग,
प्रोटेक्शन ऑफ forest. Okay, one by one all the point we will discuss. Protection of forest. So see student, why we protect the forest? Because we know that student, these forests are a natural homes of the wild animals, birds. Okay, because see student, we are human beings. ठीक है, हम क्या है, ह्यूमन बींग्स हैं. वी आर ह्यूमन बींग्स एंड वी आर लिविंग इन द हाउसेस. हम कहाँ रह रहे हैं बेटा, हाउसेस में रह रहे हैं. ठीक है, वी आर ह्यूमन बींग्स एंड वी आर लिविंग इन द हाउसेस, बट दीज फॉरेस्ट आर द नेचुरल होम्स ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स. ठीक है, सो वी मस्ट प्रोटेक्ट दिस फॉरेस्ट. इफ वी कट द forest, then what happen, where will this animal will go, and even they will don't get the food also. So we must protect the forest. So the first point which we will discuss here, that is they help to keep the environment clean by taking in carbon dioxide and releasing oxygen. So see student, we know that carbon dioxide gas is very harmful for us. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है बेटा, ये हमारे लिए हार्मफुल है. तो क्या होता है बेटा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कौन ले लेता है, प्लांट्स लेते हैं, और दे गिव अस ऑक्सीजन. इस तरह बेटा इन्वायरमेंट में आप कह सकते हो या नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस बना हुआ है. ठीक है, इससे, और ये पॉसिबल तभी है जब प्लांट्स होंगे. ठीक है, इसीलिए बोल रहा है फॉरेस्ट को क्यों सेव करें, क्योंकि फॉरेस्ट में होते क्या है बेटा, प्लांट्स होते हैं. ठीक है, सो जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, इसको ऑब्जॉर्ब, इसको दिस गैस इज यूज बाय द, इस गैस को कौन यूज कर लेते हैं, प्लांट्स यूज कर लेते हैं. और दे गिव अस विच गैस, दैट इज ऑक्सीजन, विच इज आवर लिविंग गैस. ओके, सो इफ देयर आर नो ट्रीज, अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन यूज करेगा, और दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज हार्मफुल फॉर अस. So in this manner, without tree this is not possible. Second point is the root of the tree hold the soil. Second point है soil erosion. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट था कार्बन डाइऑक्साइड पे, आई एम राइटिंग इन शॉर्टकट. सेकेंड है बेटा soil erosion. सेकेंड क्या है ना, सॉइल इरोशन है. अब देखो सॉइल इरोशन की बेटा जब हम लोग बात करते हैं, जैसा कि हमें पता है कि द ट्रीज ऑफ द रूट, ठीक है, वो उसका ट्री रूट्स का एक ये फंक्शन भी है कि रूट्स होल्ड द, रूट क्या करता है, होल्ड करता है किसको, प्लांट्स को. ठीक है, अनदर फंक्शन एंड इट ऑब्जॉर्व वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, ये भी रूट का ही फंक्शन है. बट और भी फंक्शन है रूट्स के, रूट होल्ड द सॉइल. ठीक है, रूट क्या है बेटा, सॉइल को होल्ड करके रखता है, मजबूती से पकड़ा रहता है. ठीक है, दैट इज द रीजन सॉइल वॉश्ड अवे नहीं होती है. दैट इज द रीजन द सॉइल एंड इज नॉट वॉश्ड अवे. व्हाट डज इट मीन्स, इट मीन्स देखो सॉइल वॉश्ड अवे बाई विंड से भी हो सकती है, जब बहुत स्टॉर्म्स चलते हैं, तूफान चलते हैं, हवा से भी सॉइल अपर लेयर जो है वो वॉश्ड अवे हो सकती है. और दूसरा रीज़न ये है कि जब रेनी सीजन में, मानसून सीजन में, व्हेन देयर इज लॉट ऑफ रेनफॉल, ठीक है, जब मानसून सीजन में बहुत ज़्यादा बारिश आती है, तो एट दैट टाइम व्हाट हैपन्स, द जो अपर लेयर है, जब वाटर ओवरफ्लो करने लगता है फ्रॉम द रिवर टू द सराउंडिंग्स एरिया, तो एट दैट टाइम क्या होता है, बहुत सी अपर सॉइल जो होती है वो वॉश्ड होके वाटर के संग चली जाती है, फ्लो कर जाती है, दूसरी जगह पे, प्लेस पे चली जाती है. तो और इसी को हम लोग सॉइल इरोशन भी बोलते हैं, वॉश्ड अवे ऑफ द अपर लेयर ऑफ द सॉइल, क्योंकि वो लेयर क्या है, बहुत ही फर्टाइल होती है, और वो वॉश अवे होके चली जाएगी तो वहाँ ज़्यादा प्लांट्स नहीं होंगे. सो और इसका रीज़न क्या है, कटिंग ऑफ ट्रीज के कारण ही सॉइल का इरोशन हो रहा है. ठीक है, थर्ड पॉइंट है पीपल आल्सो डिपेंड ऑन फॉरेस्ट. देखो पीपल
हम ह्यूमन बींग्स हैं, वी आर डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर द फ्यूल। फ्यूल मीन्स इन द ओल्ड टाइम, अगर ओल्ड टाइम की अगर बेटा हम लोग बात करते हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ओल्ड टाइम, ओल्ड टाइम में क्या होता था बेटा कि मैक्सिमम द पीपल आर कुकिंग फूड बाय बर्निंग द वुड। तो ये जो फॉरेस्ट की जो वुड्स हैं, लकड़ियाँ हैं, इनको हम लोग ऐसे फ्यूल भी यूज़ करते हैं फॉर कुकिंग द फूड। ओके, नेक्स्ट है फूड एंड फ्यूल एंड फूडर। फूडर मीन्स बहुत सी खाने की चीज़ें आपको फॉरेस्ट से मिलती हैं। देयर आर मैनी फ्रूट्स you will get from the forest, and there are many medicinal plants also which you will get from the forest. टिम्बर है, जो घर बनाने के, इमारत बनाने के जो मजबूत लकड़ी जो होती है, लकड़ी, ठीक है, इमारत बनाने में जो यूज होती है, ये भी हमें कहाँ से मिलती है बेटा? फॉरेस्ट से मिलती है, ठीक है। एंड लीफ लिटर, लीफ लिटर मतलब क्या होता है ना, जो पेड़ों की पत्तियाँ, ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं ना, जो पेड़ों की पत्तियाँ जो होती हैं, जब भाई लीव्स जब ड्राई हो जाती है तो ये चीज़ें क्या सॉइल में मिक्सअप हो जाती हैं, ठीक है, सॉइल में मिक्सअप हो जाती हैं और उसी में मिक्सअप होके ख़त्म हो जाती हैं। तो ये मैन्यूर का काम करती हैं, ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करती हैं, ठीक है। ये सॉइल में मिक्सअप होके सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। इन द ब्रैकेट इट इज़ आल्सो फॉर मैन्यूर प्रिपरेशन के लिए भी इनको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। मैन्यूर प्रिपरेशन में भी इसको यूज़ करते हैं। उसके लिए मेथड है, एक गड्ढा खोद देते हैं, वर्मी कंपोजिटिंग पिट बनाते हैं, उसमें सूखे पत्तियाँ, ये सब सारी चीज़ें और क्या कहते हैं, गाय, ठीक है, और उसमें मैन्यूर में यूज़ किया, गाय जो गोबर करती है बेटा, उसको भी खेतों में डाला जाता है, ठीक है, वो भी मैन्यूर का काम करता है। तो इसमें ये ग्रीन लीव्स हो जाती हैं, जो पेड़ों के पत्ते होते हैं, ठीक है, फिर गाय का जो गोबर होता है उसको एक पिट में डालने के लिए कुछ महीने के लिए छोड़ देते हैं, कुछ महीने के लिए छोड़ देते हैं सड़ने के लिए, या तो इसमें अर्थवर्म भी डालते हैं, ठीक है, अर्थवर्म उसको खा खा के ख़त्म कर देते हैं, और उसके बाद वो जो चेंज हो जाता है सड़ने के बाद, वो मैन्यूर बन जाता है, खाद बन जाता है, जिसको हम लोग एट द टाइम ऑफ कल्टीवेशन सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में इसको हम लोग यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट है कटिंग डाउन ट्रीज मीन्स टेकिंग अवे द नेचुरल हैबिटेट फ्रॉम द एनिमल्स। और देखो बेटा, अगर हम ट्रीज को कट कर रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट है कटिंग ऑफ ट्रीज, नेक्स्ट पॉइंट है कटिंग ऑफ ट्रीज। जो हम लोग बेटा कटिंग ऑफ ट्रीज कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग जो पेड़ों को काट रहे हैं, कटिंग ऑफ ट्रीज से हम लोग क्या कर रहे हैं, जो एनिमल्स के नेचुरल हैबिटेट हैं उनको स्पॉइल कर रहे हैं, उनको क्या कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हम उनके नेचुरल हैबिटेट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। क्योंकि बहुत से बर्ड्स हैं जो पेड़ों पे रहते हैं, बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जो केव्स में रहते हैं, बहुत से एनिमल्स हैं जो पेड़ों के शेल्टर में रहते हैं, और यही फॉरेस्ट और यही ट्रीज उनके नेचुरल होम है। ये उन्हें हर्ष वेदर से उन्हें सेव भी करते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी है तो जंगलों में, फॉरेस्ट में बहुत पेड़ होते हैं, अगर पेड़ के नीचे आप बैठ जाओगे तो आपको वहाँ गर्मी कम लगेगी। तो जो हर्ष वेदर कंडीशन होती है उससे भी ये क्या है, इन एनिमल्स को सेव करते हैं, ठीक है। सिंस फॉरेस्ट हैज सो मेनी इंपॉर्टेंट us, we must ensure that whenever a tree die or cut down, we plant another tree. Some special festivals are celebrated to educate and encourage people to plant trees. For example, वन महोत्सव। अब देखो इसका भी नेक्स्ट है पॉइंट है वन महोत्सव, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वन महोत्सव, ठीक है। अब देखो, जबकि बेटा हम लोग को पता है कि पेड़ क्या है, हमारी लाइफ लाइन है। एज वी नो डैट दीज ग्रीन ट्रीज और प्लांट्स आर आवर लाइफ लाइन, सो स्टूडेंट वी मस्ट कंजर्व दिस। इफ देयर इज एनी ट्री डाई, अगर कोई पेड़ सूख जाता है
डेड हो जाता है, तो हमें न्यू प्लांट्स लगा देने चाहिए। क्योंकि बेटा जब हम लोग ने नेचुरल रिसोर्सेज की बात की थी तो वहाँ मैंने आपको बताया था नेचुरल रिसोर्सेज की 2 कैटेगरीज है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज के स्टॉक कभी कंप्लीटली फिनिश नहीं हो सकते, ठीक है। तो जैसे प्लांट्स हैं, पेड़ है, आप इतना ज़्यादा ट्रीज को कट कर रहे हो तो आप इसके स्टॉक्स को फिर से वो कर सकते हो बाई प्लांटिंग द ट्रीज। अगर आप इतनी ट्रीज कट किए हैं तो आप फिर से नए पेड़ लगा के इसके स्टॉक्स बढ़ा सकते हो, ठीक है। सो और नेक्स्ट थिंग इज दैट स्पेशल फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड। अब देखो वन महोत्सव बनाया गया, ठीक है। अब देखो स्लोली स्लोली ह्यूमन एक्टिविटी से धीरे धीरे हम लोग अपने प्लेनेट को क्या डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। अब आप लोग जगह जगह पढ़ते होंगे कि एयर पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, लैंड पॉल्यूशन हो रहा है। सो हाउ दीज थिंग्स हैपन, दिस इज ड्यू टू आवर ह्यूमन एक्टिविटीज। पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो हमारी डिमांड इंक्रीज हुई, खाने की डिमांड भी इंक्रीज हुई, ठीक है। तो हमने पेड़ों को काट के लैंड तैयार किए फॉर द कल्टिवेशन पर्पस, और बहुत सा लैंड हमने बर्बाद कर दिया हाउसेस बनाने में भी, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स। हम कहाँ रहते हैं बेटा, हम हाउसेस में रहते हैं, तो इसमें भी बहुत सा लैंड हमने कवर कर दिया, ठीक है। तो लोगों को रियलाइज कराने के लिए कि इन्वायरमेंट में ये प्लांट्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ये हमारी लाइफ लाइन है, इसलिए वन महोत्सव का फेस्टिवल मनाया जाता है, लोगों को अवेयर कराया जाता है, ठीक है। अवेयर मतलब उन्हें जागरूक करना, उनको बताना कि ये पेड़ कितने इम्पोर्टेंट हैं, ये हमारे लाइफ लाइन है। अगर पेड़ नहीं होंगे, इसी तरह हम जंगलों को काटते गए, पेड़ों को काटते गए, तो हमारे प्लेनेट पे वंस अपॉन ए टाइम विल कम व्हेन देयर इज नो लाइफ। इनके बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, इनके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। सो बेटा वन महोत्सव इज द फेस्टिवल एंड इट इज सेलिब्रेटेड एट द टाइम ऑफ ए रेनी सीजन, ठीक है। रेनी सीजन में होता है, नेशनल पार्क रेनी सीजन में होता है। और इस समय रेनी सीजन में इसलिए होता है क्योंकि बेटा रेनी सीजन में प्लांट्स बहुत जल्दी, नए पेड़ आप लगाओगे ना, प्लांट्स व्हेन यू प्लांट्स ट्रीज इन दिस रेनी सीजन, तो जल्दी से उनकी ग्रोथ हो जाती है, प्लांट्स लग जाते हैं। बाकी सीजन में क्या होता है, जैसे समर सीजन है, बहुत ठंड होती है, अरे सॉरी समर सीजन है तो ये बहुत ही हॉट सीजन है, तो एट दैट टाइम जो सॉइल हो जाती है ना वो हार्ड हो जाती है। क्यों? जो मॉइस्चर होता है, जो पानी होता है, जो नमी होती है ज़मीन में, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। रेनी सीजन क्या है, सबसे सूटेबल समय होता है पेड़ों को लगाने का, ठीक है। तो एवरी ईयर वन महोत्सव का फेस्टिवल हम लोग मनाते हैं, इसमें नए पेड़ लगाते हैं एंड इट कम्स इन द मंथ ऑफ रेनी सीजन। फिर है आल्सो नेचुरल पार्क्स एंड सेंचुरीज हैव बीन क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल पार्क और सेंचुरीज भी गवर्नमेंट्स ने बनाई हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है फॉरेस्ट एज ए नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। देखो इसकी क्या जरूरत पड़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फॉरेस्ट एज ए नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज गवर्नमेंट्स ने क्यों बनाई? देखो आज हमने ड्यू टू ह्यूमन बींग्स मैनी एनिमल्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट और आर द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी फॉरेस्ट एज नेशनल पार्क्स, फॉरेस्ट एज ए नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज।
ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट लाइन। अब है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, ड्यू टू ह्यूमन बींग्स नोट कर लो, ड्यू टू ह्यूमन बींग्स मैनी एनिमल्स due to human beings many animals become extinct or are on the verge of extinction. देखो what is the meaning of this line in the chapter, ठीक है। due to human beings, ठीक है, due to human beings many animals become extinct. What does mean? It means that due to human activity we are cutting the trees, destroying the forest. We are making, by cutting the tree, more and more land we make free for the cultivation purpose and many other activities also, और बहुत दूसरी एक्टिविटीज़ भी, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है स्टूडेंट, इसकी वजह से क्या, मैंने ऑलरेडी चैप्टर के जब इस टॉपिक को पढ़ाना स्टार्ट किया था आप लोगों से मैंने बताया था कि दीज फॉरेस्ट आर द नेचुरल होम्स। ये फॉरेस्ट क्या है, नेचुरल होम्स हैं, किसके, एनिमल्स के। अगर आप फॉरेस्ट में ट्रीज कट कर रहे हो तो इसका मतलब आप उनके नेचुरल होम्स को डिस्ट्रॉय कर लो। सो ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी व्हाट हैपन मैनी एनिमल बिकम एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब है बहुत से एनिमल क्या लुप्त होने लगे, मतलब लुप्त होने मतलब उनकी जो पॉपुलेशन है बहुत कम होने लगी, लेस होने लगी, ठीक है, उनकी पॉपुलेशन जो है बहुत लेस होने लगी। आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है, मतलब लुप्त होने लगे, या तो आप ऐसे कह सकते हो कि एकदम खत्म होने के कगार पे हो गए वो। मतलब अगर उन्हें नहीं सेव किया तो एक समय ऐसा आएगा कि हम सिर्फ बुक्स में पढ़ेंगे कि ये एनिमल्स हमारे प्लेनेट पे थे, ठीक है। सो इसका मीनिंग ये है, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी मैनी एनिमल्स बिकम एक्सटिंक्ट, मतलब लुप्त होने लगे, गायब होने लगे, या तो उनकी पॉपुलेशन इतनी कम हो गई है कि अगर उन्हें कंजर्व नहीं किया गया, नहीं बचाया गया, तो एक समय आएगा कि हो सकता है वो इस प्लेनेट से बिल्कुल गायब ही हो जाए। तो इसके लिए गवर्नमेंट्स ने क्या किया बेटा, गवर्नमेंट ने, देखिए इसके लिए गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई। यहाँ उन एनिमल्स को रखा जिनकी डे बाय डे पॉपुलेशन क्या है, बहुत लेस होती जा रही है, ठीक है। इसी तरह ट्रीज़ का भी है, ट्रीज़ को कट ना करा जाए, फॉरेस्ट को ना कट किया जाए। तो गवर्नमेंट देखो अब हमको ये रियलाइज़ हो रहा है कि हमारी एक्टिविटी से हम, क्योंकि ये प्लांट्स हैं हमारी लाइफ लाइन है, इनके बिना हमारी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। सो अब देखेंगे आप लोग कि गवर्नमेंट ने सारे जितने भी ट्रीज़ हैं सारे पे नंबरिंग कर रखी है। एक भी ट्री कट होती है तो पता चल जाता है कि यहाँ से कौन पेड़ गायब हो गया। और इवन वाइल्ड एनिमल्स को, लाइफ को सेव करने के लिए गवर्नमेंट ने पोचिंग पे बैन लगा रखा। पोचिंग मतलब होता है शिकार पे, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हो तो इट इज़ यू आर डूइंग अगेंस्ट द लॉ। अगर आप ऐसा करते हो तो लॉ के अगेंस्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट ने लॉ बना रखा है पेड़ नहीं काटने और ना ही पोचिंग करनी है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको प्रिजन, जेल भी हो सकती है, ठीक है। सो ऐसा क्यों किया गवर्नमेंट ने, टू सेव द ट्रीज एंड टू सेव द वाइल्ड लाइफ, ठीक है। ट्रीज और वाइल्ड लाइफ को सेव करने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसे स्ट्रिक्ट लॉ बनाए हैं,
Okay, thank you student. We will continue the topic in the next video.